وسلم کے دور میں بارشیں بہت کم ہوتی تھیں، بہت کم۔ دعا کے لیے لوگ بارشوں کا انتظار کرتے تھے۔ کون سا لمحہ ایسا ہو، کون سی گھڑی ایسی ہو اور اللہ کا وعدہ پورا ہو۔ اللہ سچا، اللہ کا وعدہ سچا۔ حدیث میں آتا ہے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری آقا کا فرمان ہے، بارش میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بارش صرف ایک قسم پڑے، اتنی برکتیں، رحمتیں، خوشحالیاں پائیں۔ آج بتائیں گے حضرت طارق محمود صاحب اس ویڈیو کلپ میں چھوٹا سا عمل ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو، لیٹس۔ حرم میں بارش نہیں ہوتی تھی، بہت کم۔ اب بھی بارش کم ہوتی ہے، لیکن اب بارشیں زیادہ شروع ہوئی ہیں، اس سے پہلے بارشیں نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بارشیں بہت کم ہوتی تھی، بہت کم۔ قبولیت دعا کے لیے لوگ بارشوں کا انتظار کرتے تھے۔ کون سا لمحہ ایسا ہو، کون سی گھڑی ایسی ہو کہ بارش ہو اور اللہ کا وعدہ پورا ہو۔ اللہ سچا، اللہ کا وعدہ سچا۔ حدیث میں آتا ہے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری آقا کا فرمان ہے، بارش میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ بولیں، بارش میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ سچا، اللہ کا حبیب سچا، جو فرشتہ جبریل وحی لایا وہ سچا، بارش میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے پاس ایک قریب آدمی آیا، مجھے کہنے لگا یہ مسائل، یہ مشکلات، یہ غربت، تنگدستی، اس نے اپنے حالات، مسائل اور مشکلات بتائے بہت زیادہ۔ میں نے اسے ایک لفظ پڑھنے کو دیا، یا وہاب، یا وہاب رب حبلی ملکا یا وہاب پڑھنے کو دیا۔ اور میں نے کہا کہ جب بھی بارش ہو اس میں دعا مانگ۔ مجھے کہنے لگا میں تو غریب آدمی، دعا کیسے مانگوں گا، ان پڑھ آدمی، دعا کیسے مانگوں گا۔ پھر میں نے اسے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا اور دعا کے ذریعے بارش کو، بارش کے ذریعے مانگنے کا طریقہ بتایا۔ کیا خیال ہے آج وہی طریقہ اسی بارش میں کرنا لے؟ نقدہو سوادہو ادھارہو فسادہو۔ میں نے اسے کہا کہ اولا کو 3 دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ درود پاک پڑھنے کے بعد، 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد دعا مانگ، گڑ گڑا کے بھکاری بن کے، یا وہابوں کے وسیلے سے، یا وہابوں کے لفظ سے، یا وہابوں کے اسم سے، اور یا وہابوں کی طاقت سے، اور یا وہابوں کی تاثیر سے، اور یا وہابوں پہ اللہ نے جو وعدے رکھے ہیں اور وعدوں کے یقین پر۔ یہ میرا لفظ آخری بڑا توجہ طلب ہے، توجہ طلب ہے۔ یا وہابوں پہ جو وعدے رکھے ہیں ان وعدوں کے یقین پر۔ اب ہم ایسے کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، پہلے درود شریف پڑھیں گے۔ آج کی محفل یہی ہے کہ کچھ جھولیاں بھر کے جائیں، آج کا درس یہی ہے کہ جھولیاں بھر کے جائیں، آج کی آمد یہی ہے کہ جھولیاں بھر کے جائیں، اور آج کی آمد یہی ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کے سچے وعدوں سے فائدہ اور فیض پاتے جائیں۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ اس کے حبیب کے سچے وعدے، تو ہاتھ اٹھا کے پورے وجدان سے ڈوب کے اپنے مقاصد، اپنے مسائل، اپنی مشکلیں، اپنی روحانی جسمانی زندگی کے مسائل، پریشانیاں، الجھنیں، ان کا تصور کر کے ڈوب کے بآواز بلند، بآواز بلند، بآواز بلند ڈوب کے ہم پڑھیں گے، یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب پڑھے، ڈوب کے پڑھے۔ بارش ہو رہی، وعدے پورے ہو رہے، اللہ سچا، اس کا حبیب سچا۔ مدد اور توجہ کریں، بس اسی کی ذات سے نو لگائیں۔ وہاب، یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب۔ اے عطا کرنے والے، اے دینے والے، مٹے مٹے مسا
से परदेसी आए हैं ना सर बिहार बार-बार और सारा कुछ में झाड़े किसी देश से आगे आ जाओ हमारे पास आ गया अब वेला कि मैं लंगंडी आगे वेला तू समझा तेरा बाप सच्चा अरे तेरा कमाल करते थे बादशाह जी और जब बादशाह होते ही फिर टूट जाते थे दुआओं में या वहाब या वहाब या वहाब या वहाब तवज्जो से पढ़े अपने मकसद अपने मसाइल अपनी मुश्किलात का तसव्वुर करके सर झुका के डूब के अल्लाह से लो लगा के या वहाब या वहाब और तवज्जो से आज उस बारिश की बरकतों से लेकर जाना है उसके खजाने से झोलियां भर के जानी है रहमतें बरकतें इज्जतें औलादें फिर औलाद का बख्त लेना है आज इस बारिश की बरकत से और या वहाबों की बरकत से फिर औलाद का नसीब लेना है या वहाब या वहाब अल्लाह इस मजमे की बरकत से जो तुझे पसंद है कोई बच्चा कोई जवान कोई नेक बंदी कोई सफेद माल कोई तौबा करने वाला अल्लाह अपना नाम तुझे बड़ा पसंद है अल्लाह अपने नाम की पसंदीदगी में हमारी दुआएं कबूल कर ले या वहाब या वहाब या वहाब या वहाब अल्लाह इस इज्तिमाई दुआ को कबूल कर ले अपने नाम की बरकत से आमीन आमीन दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू बहुत बड़ी कमाई कर ली आपने मुखलिसीन जमा हो गौर से समझिएगा जिनका मकसूद जिनका मतलूब ला मतलूबी इल्लल्लाह ला महबूबी इल्लल्लाह ला महबूबी इल्लल्लाह ला मतलूबी इल्लल्लाह ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुखलिसीन जमा हो जिनका मतलूब अल्लाह उसकी मोहब्बत को पाना है ये सारे जमा हो जाएं तो जमा होने के बाद अल्लाह के नाम को विजदान से पढ़ें किसी के दिल का दर्द किसी की रूह की कैफियत किसी के आंसू किसी के जज्बे ये सारी कैफियत जमा हो जाए अल्लाह पाक इंशाअल्लाह कबूल फरमाते हैं फिर बारिश के वादे सच्चे अल्लाह के वादे सच्चे या वहाब अब मैं इसका हवाला देता हूँ असल में अमलियात रूहानियत की दुनिया एक पूरी साइंस है एक पूरा निजाम है जरूरी नहीं कि हर बंदे को समझ आ जाए हर बंदे का अपना सब्जेक्ट है शाह अहलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह शाह वलीउल्लाह का खानदान है ये मैंने उनका हवाला दिया है उनका अमल दिया है शाह अहलुल्लाह और शाह वलीउल्लाह का खानदान आपके घर में है बालाकोट में शाह वलीउल्लाह का खानदान आपके बालाकोट में सो रहा है शाह इस्माइल शाह अहमद रहमतुल्लाह अलैह सैयद अहमद ये उनका अमल है कि बारिश हो और फिर कुछ लोग हों और फिर उन लोगों के दरमियान बैठ के और या वहाबों का जिक्र किया जाए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हर अमल का सबूत हर अमल का हवाला हर अमल का रेफरेंस है अब आप एक बंदा कहे कि ये कहाँ लिखा हुआ है तो सारा दिन मोबाइल देखे वहां तो लिखा हुआ नहीं है जहां लिखा हुआ वहां तो पढ़ता नहीं है ये ताकतवर अमल आपने किया है इसे आपको मुबारक हो बारिश के वादे एक दरखास्त करूंगा आपसे बारिश का पानी पिया करें अपनी जिंदगी में शामिल करें मैं घर में मुसलसल बारिश का पानी पीता हूं वो लोग जो सिंध में रहते हैं मैं अभी मिस्र में गया बड़ा लंबा सफर किया मिस्र का बहुत लंबा सफर किया पाकिस्तान से वापसी से लगभग 8 फ्लाइटें तब्दील की बहुत दूर दूर तक गया
बारिश नहीं होती। उसे कहने लगे कि मिस्र में बारिश साल में एक आध दफा होती है और चंद बूंदें गिरती हैं, हल्की बिल्कुल मुख्तसर बारिश होती है, बारिश नहीं होती। बारिश का पानी इकट्ठा किया करें। मैंने क्या तरीका किया है, क्योंकि लाहौर में बारिश होती है, आपके यहाँ तो बहुत ज्यादा होती है, वहां मैंने बर्तन रखे हैं और बर्तनों के जरिए जो है फिर पानी जमा करता हूँ, फिर उनको कपड़े में छान लेता हूँ। छानने के बाद मैंने डिस्पेंसर ये बोतलें रखी हुई हैं बड़ी, ये जो आजकल पानी मिनरल वाटर की बोतलें हैं ना, ये रखी हुई हैं, इनमें छान के बंद करके रख देता हूँ और फिर वो बोतल डिस्पेंसर पे डाल के ठंडा गरम उसको पीता रहता हूँ। आप उसमें ना रखें, इन बोतलों को भर लें और इसमें बाजू का जाला भी आ जाता है, फिर से छान लिया करें, खराब नहीं होता। 3 पानी ऐसे हैं जिनके साथ शिफा का वादा है। कितने पानी? सबसे अफजल पानी ज़मज़म है, सबसे अफजल पानी ज़मज़म है, उसके साथ राहत का वादा, उसके साथ शिफा का वादा, उसके साथ पेट भरने का वादा, उसका भूख मिटाने का वादा, ज़मज़म के साथ प्यास का वादा, और फिर ज़मज़म के साथ खात्मा बिल खैर का वादा। वुज़ू के 3 घोंट पानी शिफा है, बीमारियों का इलाज है। कोई आदत ना छूटती हो, घर का कोई मरीज हो, किसी को कोई चीज लग गई हो, इल्लत, कोई चीज ऐसी हो जो नामुमकिन हो, वो नहीं पीता, आप उसकी नियत करके वुज़ू के 3 घूंट पानी पिए। आप खुद अपनी नियत करके पिए। मेरे आका का ये मसीनान अमल है, इस अमल के अंदर जान है, इसके अंदर ताकत है, इस अमल में कुव्वत है। ज़मज़म का पानी, उसकी तासीर आप जानते भी हैं, बचपन से बचपन तक सुनी भी है, और उसकी ताकत और उसके कमालात से आप बखूबी वाकिफ हैं। ज़मज़म। अब बारिश के पानी को थोड़ा सा बयान करूंगा। बारिश का पानी शिफा है। हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान है, मेरे आका का फरमान है, बारिश के हर कतरे के साथ एक फरिश्ता उतरता है। इससे पहले साइंस कहती थी कि बारिश के पानी में आलूदगी है, हमारी फजाओं में, हमारे वेदर में, फजाओं में आलूदगी है। और बयान बाद में, क्योंकि अल्लाह सच्चा, उसका हबीब सच्चा, हबीब का फरमान सच्चा, सारी दुनिया की साइंस की थ्योरियां बदलेंगी, मेरे कमली वाली की थ्योरियां नहीं बदलेंगी कि ये पहाड़ों के दौर का वाकया उस वक्त था जब पत्थर के दौर का वाकया है, अब चांद और साइंस के दौर का वाकया है। नहीं नहीं, सारी दुनिया यूं से यूं हो जाए, मेरे कमली वाले का फरमान हक और सच है। सदक़्ता या रसूलल्लाह, हक और सच है। पहले साइंस कहती थी कि इसमें आलूदगी है, अब कहती है कि बारिश को अल्लाह ने ऐसा संभाल के रखा है, ये गोली की रफ्तार, जो गोली की जो रफ्तार होती है, बुलेट की रफ्तार, ये उससे 6 गुना, बात साइंस की थ्योरी है 8 गुना इससे तेज है। अगर अल्लाह ने आसमान पे तहें ना लगाई होती, तहें इसकी ताकत को तोड़ती है और यहाँ आके हमें हल्का सा एहसास होता है कि मेरे ऊपर बारिश का कतरा गिरा है, वरना अब्रहा के लश्कर की कहानी बन जाती, हमारी गोली ये पार निकल जाती। बारिश की ताकत इतनी ज्यादा है, साइंस कहती है कि जब बारिश की ताकत इतनी ज्यादा है, ये ताकत सारी आलूदगियों को, ये सारी गलत चीजों को, नुकसानदेह चीजों को जो हवाओं और फजाओं में है, उसको तोड़ के रख के जब नीचे आता है ये कतरा, तो ये शिफा बन जाता है। और मेरे हुजूर ने फरमाया, बारिश के पानी में शिफा है, घरों में इस्तेमाल करें, इसको जमा करने का एहतमाम किया करें, इसको जमा करने की तरकीब बनाया करें। अच्छा, इसकी भी एक अमल मैं बताया करता हूँ, जिंदगी में एक दफा उसी पे कर लें, तो उसी पानी को बढ़ाते रहें। आप चाहे हर हफ्ते पे कर लें, आप चाहे महीने के बाद फिर कर लें, उसी पानी को एक दफा कर लें। ये गौर से सुनिएगा, 70 बार अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम, 70 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनस सालिमीन, 70 बार सूरत फातिहा, 70 बार आयतुल कुर्सी और 70 बार आखिरी चारे कुल। घर के चंद अफराद मिलकर पढ़ लें। आप खुद अकेला पढ़ना चाहें, एक दिन में नहीं पढ़ सकते, 3 दिन में पढ़ लें, पर इसकी तासीर कमाल है। बारिश के पानी में अगर ये पढ़ लिया जाए और बारिश के पानी में इसको पढ़ लें, और पढ़ने के बाद इस पानी को खाने में, पीने में, चाय में, दूध में, हंडिया में, आटा गूंदने में, नहाने में नहीं, इस्तेमाल में लाएं, तो जिंदगी का कतरा कतरा शिफा बन जाता है। आज तक इतनी ज्यादा बीमारियां कभी नहीं देखी होंगी। पुराने बूढ़ों से पूछ लें, यहाँ की जड़ी बूटियां, आप तो जड़ी बूटियों में मालामाल लोग हैं, यहाँ की जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिनमें शिफा ही शिफा है। बीमारियां बढ़ गई, रोग बढ़ गए, तकलीफें बढ़ गई, उसकी बुनियादी वजह है शिफा के राज हम भूल गए। ये ब्लड दोहराऊंगा, आप मुखलिसीन बैठे हैं, आप सच्चे लोग बैठे हैं, शिफा के राज लोग भूल गए, जो मेरे आका ने शिफा के राज बताए हैं अहादीस में, मुस्तनद और सही हदीस में, जिनकी सच्ची असनाद मौजूद है। शिफा के राज हम भूल गए।
शिफा के राज हम भूल गए। बारिश का पानी शिफा का राज है, वुजू के बाद का पानी शिफा का राज है। ज़मज़म तो वैसे ही अज़ल से अबद तक शिफा है, ये शिफा का राज है। इस शिफा के राज को कभी ना भूलें। अपनी जिंदगी में बारिश के पानी को शामिल करें और इह्तिमाम से जमा करें, और जमा करने के बाद इस्तेमाल लाएं। और अपने साल का कोटा, मैं तो अपने साल का कोटा रखता हूं, क्योंकि मौसम में बारिश, सावन भादों में बारिशें ज्यादा होती हैं, इसका इस्तेमाल करें। बीमारों को, मरीजों को, सेहतमंद को घर में इसका इस्तेमाल करें, बारिश का पानी। और जब बारिश हो, जरूरी नहीं आप कहीं रुक जाएं, जरूरी नहीं मुसल्ला बिछाएं, जरूरी नहीं किबला रुख हो जाएं, दिल को अल्लाह के साथ लगा दें। मुझे रोज उसके गम में यूं सारी रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना, दिल के साथ तार लग जाए और अल्लाह से बातें करना शुरू कर दें। मुझे रोज उसके गम में यूं सारी रात करना, बातें करना शुरू कर दें। अल्लाह मेरे ये मसले हैं, अल्लाह तो कर दे, तेरे लिए कौन सी देर है। अल्लाह मेरी बेटी जवान, बेटा जवान, अल्लाह औलाद नहीं, अल्लाह मेरा घर नहीं, अल्लाह रिज़्क़ वसी कर दे, अल्लाह मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर दे। अल्लाह वो वक्त न लाना मेरा कफन सफेद हो, मेरा दिल सुना हो और काले दिल के साथ हाजिरी हो। अल्लाह मेरा मौला, जिस तरह मेरा कफन सफेद है, इस तरह मेरा दिल भी पाक कर दे। अल्लाह से बातें करें, बारिश हो रही है, अल्लाह के साथ बातों में लग जाए। जैसे आपने देखा होगा ना, बंदे हैंड फ्री, ये हैंड फ्री पहले तो चलो तारें लगी होती थी, अब छोटी सी टूटी होती है, कान में डाली। मैंने एक दफा बंदे को देखा ऐसी बातें कर रहा, मैंने कहा यही माजूर है, तुम कैसी बातें कर रहे हैं, उधर जाए बातें करें, उधर जाए बातें करें। जब नया नया हैंड फ्री आया, क्यों वो बातें कर रहा, पता चला उसकी तार लगी हुई है, उसके राब्ते हो चुके हैं। ऐसी तार लग जाए, ऐसे राब्ते हो जाए उसके साथ। एक आपको अनोखी हदीस का मफहूम अर्ज करता हूं, और मैं जो सुखी ले ले, सूखे वक्त में, जब राहत का वक्त हो, कोई परेशानी तकलीफ ना हो, उस वक्त अल्लाह से बातें करे। फरमाया कि जब उसको परेशानी हो जाए, दुख हो जाए, और वो फिर अल्लाह से बातें करे, फरिश्ते कहते हैं मौला मानूस आवाज है, ऐसी आवाज है जो पहले भी सुनी है। फरिश्ते उसकी सिफारिश करते हैं, फरिश्ते उसकी सिफारिश करते हैं। ये वो बंदा था जब कोई दुख नहीं था, कोई गम नहीं था, अल्लाह आपसे बातें करता था। आज इसको गम, आज इसको परेशानी, आज इसको दुख हो गया है, आपसे बातें करता है। और अल्लाह पाक की बारगाह में फरिश्ते बार बार सिफारिश करते हैं, और फिर उसकी बरकत से अल्लाह काम बना देता है। बातें करना शुरू कर दें, अल्लाह से बातें करें दिल ही दिल में। कोई घड़ी ऐसी होती है, जैसे बारिश के वक्त की घड़ी बता रहा हूं, कोई लम्हा ऐसा होता है, कोई साथ ऐसी होती है, कोई लम्हा, उस वक्त अल्लाह की बारगाह में एक पल में सारा कुछ कबूल हो जाता है। और बाज़-ओ-क़ात आपके लिए, और बाज़-ओ-क़ात उसकी शहंशाहियत बढ़ गई है, बनी हुई है, और बनी हुई है, और बनी रहेगी। अल्लाह अपने नस्लों के लिए फैसले करता है। फरिश्तों लिखो इसकी 2 नस्लें, फरिश्तों लिखो इसकी 4 नस्लें, इसकी 5, इसकी 7, इसकी 9। इसका भी वाक़या सुनाता हूँ। आपने देखा होगा बाज़ बंदे बड़ी सहूलत में, बड़ी राहत में, रिज़्क़ की वुसअत में बहुत, लेकिन मुंह मरते हैं सारा वक्त खत्म। आपके पास वाक़यात होंगे और आप महसूस करते होंगे कि कितने लोग ऐसे हैं कि सारा वक्त खत्म, सारा वक्त खत्म, सारा वक्त खत्म। कहते हैं कि वो अपना वक्त साथ ले गया, ऊपर से फैसले छोटे करवाए थे, फैसले बड़े करवाने। फिर दुनिया जहान सारी की सारी जितनी महंगाइयों के फैसले हो जाएं, जितने महंगाइयों के तूफान आ जाएं, अल्लाह तुझे खिलाएगा, पिलाएगा, नस्लों को पहनाएगा, रिज़्क़, इज्जत, दौलत के बरकतों के दरवाजे अल्लाह तुझे दिखाएगा। अल्लाह से फैसले करवाने हैं इन कबूलियत की घड़ियों में। यह बारिश का लम्हा कबूलियत की घड़ी, जमजम को पीते हुए कबूलियत की घड़ी, बारिश का पानी पीना अल्लाह की हर शिफा, वुज़ू के 3 घूंट शिफा, काबा को देखने में कबूलियत की घड़ी, गुंबद खज़रा को देखने में कबूलियत की घड़ी, कुरान को देखना कबूलियत की घड़ी, कुरान को पढ़ना कबूलियत की घड़ी, और कुरान को सिफारिश किया करें। अल्लाह से मेरी सिफारिश कर दे, मेरी ये काम बनवा दे। इसमें भी हदीस बताता हूँ, आका का फरमान है, सूरत तबारकल्लाह, सूरत मुल्क, फरमाया ये झगड़ालू सूरत है, ये झगड़ा करती है। सूरत मुल्क झगड़ालू सूरत है, ये झगड़ा करती है। मैं कैसे, जो इसको पढ़ेगा, जो इसका एक और फायदा भी बताता हूँ अनोखा, जो इसको पढ़ेगा क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ झगड़ा करेगी, या अल्लाह मुझे या तो अपने कुरान से निकाल दे या फिर इस बंदे की मग़फ़िरत कर दे। कुरान को मिन्नत क्या करें, कुरान हमारी सिफारिश कर अल्लाह के यहाँ, कुरान हमारे मसले पहुंचा अल्लाह के यहाँ, अल्लाह की बारगाह में।
ہماری مسائل اور مشکلات میں ہمارے کام بنوا دے. سچ بتاؤں قرآن کام بنواتا ہے, قرآن مسائل حل کرتا ہے, اور پوری روایات میں مستند باتیں بتا رہا ہوں. قرآن سفارشی بھی ہے, سفارش کرے گا یا پھر قرآن پکڑوائے گا کہ یا اللہ ساری زندگی اس نے مجھے دیکھا نہیں, پڑھا نہیں, اس نے مجھے سوچا نہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں 18 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی, اور بات کہاں کی کر رہا ہوں, اندرون سندھ کی سخت ترین گرمی. اچھا اگر گرمی نہ ہو تو آم آپ کے پاس کیسے پہنچے؟ آپ جیسا ماحول ہو آم کیسے پکے؟ دنیا کہہ رہی ہے گرمی ہے گرمی ہے. اللہ والے گرمی ہوگی تو کھجور پکے گی, گرمی ہوگی تو آم پکے گا. اس کریم نے اپنا نظام, اور اگر گرمی ہو جائے تو یہاں آڑو بھی جل جائے, خوبانی بھی جل جائے, آپ کی پٹی میں جو پھل ہیں. اللہ نے ہر چیز کا توازن رکھنا ہے, توازن رکھنا ہے. 18 گھنٹے لائٹ ہی نہیں ہوتی, بجلی نہیں ہوتی. کہنے لگے میں بڑے سکون سے سوتا ہوں, سارے چیختے ہیں, کھڑکیاں کھولتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, میں سکون سے پسینہ پسینہ اٹھتا ہوں, بہترین پرسکون نیند. کہنے لگے پھر مجھے چھیڑتے ہیں, کھینچتے ہیں, اٹھ تو کیوں سو رہا ہے, ہم اگر اپنی ضرورت تو پھر تو کیوں سوتا ہے؟ کہا میں وہاں ملازمت کرتا تھا, ہم نے ایک کمرہ لیا ہوا تھا, 3-4 افراد تھے, میں سکون سے سو جاتا تھا, وہ سو نہیں سکتے تھے. آخر ایک دن مجھ سے پوچھنے لگے, اب راز سنیے گا ذرا, سکون کا راز. ایک دن مجھ سے ویورز آپ نے دیکھا حضرت صاحب نے جو عمل بتایا ہے ویڈیو میں, آپ اس کو اچھی طرح غور سے پڑھ لیں, وہ عمل کرنے سے آپ کو بے شمار فائدہ ہوگا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.